Good afternoon to all, and I welcome the chair of the Regional Fashion Tech Forum, Ms. Himani Arora, and Ms. Bharti Sood, the Senior Regional Director, and of course Karan. And I also, my warm wishes to my colleague, Mr. Rohit Gupta, the ADC Amritsar. This is an interaction and between states, I would say, and I'm told that we also expect international participation. Trade, as we all know, is the backbone of any country, and this city, the holy city Amritsar, I have been here for now about 3.5 months. This city, I would say, truly is where trade started in Punjab. So the district administration also, in conjunction with Karan and the PITEX team, we've been involved in organizing this for quite some time now, although the municipal corporation involvement is limited to the basics. But then again, over the next few days, you will see a lot many dignitaries from the government who come and headline each day. And we expect a lot of participation. We expect to see innovation, and we expect to see some new ideas that have finally become mainstream. India, as we all know, I often say this, it is one of the biggest markets worldwide. While we talk about economies, big economies, the US and the European market, we talk about the Asian giant, the China, we talk about China as a big economy, as probably the biggest economy. In my opinion, it is India which is actually the organized, the unorganized sectors combined, probably is the biggest economy in the world. Indian industry has never been short of innovation. I remember when I was a student, in University Business School, so there were a lot of, if I talk about those industries where people actually got placements, and I look at those industries now, most of them do not exist, even as fields. I mean, one was a publishing house. Publishing houses have actually probably become nearly extinct. So this is actually innovation. This is what we expect to see in the coming few days. So with these words, I would welcome all the delegates once again, all participants once again. And as I said, we expect that this interaction will be fruitful for both the participants and the visitors. Thank you. Thank you, sir. जैसे कि सर ने बताया कि फर्स्ट टाइम सब तो पहला था आई थिंक पाइटेक्स वेन्यू पे आज सबका ही पहला विजिट होगा, एटलीस्ट मेरा तो पहला ही है, मैं भी चंडीगढ़ से पहुंचा ही हूँ। तो एक बार फिर इस साल 5 दिन का ये जो त्यौहार मनाने हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो उसके लिए मीडिया की सपोर्ट हमें हमेशा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट रही है। मैं पीएचडी चेंबर की तरफ से आप सबका वेलकम भी करता हूँ और एक बार दिल से थैंक यू करता हूँ कि आप हमेशा की तरह आप हाँ साउंड क्लियर आ रही है जी? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं एक बार इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मेरे साथ जो सारे डिग्निटरीज
टाइस पे हैं। मिस्टर रोहित गुप्ता जी हमारे एडीसी साहब हैं, आप सब जानते ही होंगे अमृतसर से। डीसी सर और एमसी कमिश्नर सर हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। मेरे लेफ्ट में हैं जयदीप सिंह जी, हमारे कन्वीनर हैं अमृतसर जोन के। हिमानी अरोड़ा जी, इनसे भी आई थिंक मोस्ट ऑफ द मीडिया इज वेरी फेमिलियर। ये बहुत सारे पहले भी ऐसे सोशल इवेंट्स में लीड करते रहे हैं। तो ये हमारे चेयर हैं जी रीजनल फैशन टेक फोरम के। साथ हमारे सेक्रेटेरिएट से सीनियर रीजनल डायरेक्टर भारती सूद जी, निपुण अग्रवाल जी हमारे को कन्वीनर, एंड सारे मीडिया फ्रेंडली एक बारी फिर जी आयन हुए थे। मैं सबको ये बताना चाहूँगा, इस बार हमारा जो पाइटेक्स है ये 19th एडिशन है। इसे हमने 2005 में शुरू किया था और हमेशा की तरह ये एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है। इतना प्यार, इतना सपोर्ट हमें अमृतसर और आसपास के रीजन से मिलता है कि हमें बार बार कुछ और नया करने का एक जोश रहता है। वो तो अनफॉर्चुनेटली कि मेरे ख्याल से आपके अमृतसर के जितने ग्राउंड हैं, हम सब में ये शो लेके जा चुके हैं और ये अब लास्ट मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ग्राउंड है। अब इसके बाद हम इसको और नहीं बढ़ा पा रहे, तो वो एक हमारी एक लिमिटेशन है। तो इसमें तकरीबन 600 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें तकरीबन 6 से 8 स्टेट गवर्नमेंट्स की रिप्रेजेंटेशंस हैं, 4 कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। ये बातें हमने शायद आपसे पहले भी अपनी जो प्री इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। इसमें हॉल कुछ ऐसे हैं जो अपीडा पवेलियन है, टेक्सटाइल पवेलियन है जो गुजरात और जम्मू कश्मीर से चीज़ें आई हैं। नेशनल जूट बोर्ड इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है और हमारा एक इस बार विशेष तौर पे हमने काफ़ी बड़ा ऑटो पवेलियन भी आप सबके लिए बनाया है यहाँ पे। इसके अलावा जो एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, हमारे जो रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज यहाँ पर विजिट करेंगे इन 5 दिनों में। बाकी तो गवर्नमेंट की तरफ से सर आपको सारा ब्रीफ करेंगे। तो 4 दिसंबर यानी कि जो कल का दिन है, उस दिन यहाँ पर विजया किशोर राहतकर जी जो चेयरपर्सन हैं मैम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आ रहे हैं। उनके सेशन वगैरह के बारे में आपको हिमानी जी सारा ब्रीफ करेंगे। 5th को हमारा इनॉग्रल सेशन है जिसके लिए श्री रामनाथ कोविंद जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो और साथ में हरपाल चीमा जी अपने फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब गवर्नमेंट से, वो इसका इनॉग्रेशन सेरेमनी करेंगे 5th को सुबह 12 बजे। 5th को हमारा 4 बजे। 6 दिसंबर को हमारे पास ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा श्री आशिम कुमार घोष जी यहाँ पर विजिट के लिए आ रहे हैं। उनके साथ श्री लालजीत भुल्लर जी हमारे जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं वो यहाँ पर होंगे। उसी दिन 6 शाम को हमारा एक पंजाब हेरिटेज शो करके होता है जिसमें इस बार हमने बॉलीवुड से रजत बेदी जी आ रहे हैं जो अभी आप सबने अगर बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक सीरीज़ देखी हो जिसके वो एक लीड रोल में थे। साथ में जो 80s और 90s के दशक की जो महान कलाकार हैं हेलन खान जी जो हमारे खान ब्रदर्स के मदर भी हैं, तो वो भी आ रहे हैं। उस शो के बारे में भी आपको हिमानी जी ब्रीफ करेंगे। इसके बाद हमारा सेकेंड एडिशन है पंजाब टूरिज़्म रिकग्निशन अवार्ड्स का, जिसमें तरुणप्रीत सोन जी जो हमारे ऑनरेबल टूरिज़्म मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर होंगे। साथ में और भी डिग्निटरीज और जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। और इस बार फिर एक इंडिपेंडेंट जूरी की तरफ से ये सारे विनर्स को चुना गया है। और 7th को हमारे पास सावित्री ठाकुर जी आ रहे हैं जो यूनियन मिनिस्टर हैं चाइल्ड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उनके सेशन के बारे में भी आपको मैम बताएंगे। और फिर लास्ट डे 8th को जो हमारी वैलिडिटी सेरेमनी है जिसको क्लोजिंग सेरेमनी भी कहा जाता है, उसके लिए श्री गुलाब चंद कटारिया जी जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब है, श्री हरजोत बैस जी जो
एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो होंगे। 7th को हमारे पास शहजाद पूनावाला जी भी यहाँ पर आ रहे हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है GST 2.0 आई गेस 2.0, तो उसका एक हम अनवीलिंग भी यहाँ पर और एक साथ सेशन सावित्री मैम अनवील करेंगे उनकी बुक को। तो इसी तरह बाकी और भी जो आपके डिग्निटरीज हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं अपने पंजाब गवर्नमेंट के, MLAs हैं हमारे, जबकि मैं जानता हूँ कुछ अनफॉर्चुनेटली पंजाब गवर्नमेंट के काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव्स थोड़े बिजी हो गए वो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने में। सबको अपने हल्के में ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, अपने कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन चल रही है उनकी। तो मेरे को बट तब भी हम उनसे लगातार इन टच है, तो विल ट्राई के सब अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के एटलीस्ट विजिट करने जरूर आ सके, अगर किसी सेशन में पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते। बट बाकी डिग्निटरीज जो मेरे सारे चंडीगढ़ या दिल्ली से आए थे, मैंने आप सबको बताया है। इसके अलावा एक बार फिर हम अमृतसर के लोगों का धन्यवाद करेंगे और सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारी टीम ने, हमारे सेक्रेटरीट ने, जो आप सब देख रहे हैं यहाँ पर हैं, वो काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से मेहनत कर रहे थे ताकि आज वो कहते हैं ना कि इस एक त्यौहार को हम आपके सामने फिर एक बार पिछले सालों से बेहतर लेके आ सके। तो इसी के साथ आप सबका एक बार वेलकम और थैंक यू। अब मैं ADC सर को रिक्वेस्ट करूँगा, रोहित जी को, कि वो गवर्नमेंट की साइड से आपको अपडेट करेंगे कि बिकॉज कहने को ये PhD का इवेंट होता है, बट जो मेन होस्ट मैंने आते से रोहित जी को बोला, मैं कहा हम तो अभी आए हैं, अब आपके जुम्मे हैं, हमें 5-6 दिन यहाँ पे आपसे संभालना है, क्योंकि होस्ट तो हमेशा लोकल सरकार, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो ओवर टू द होस्ट नाउ। थैंक यू करण जी। बैठे ने मेरे लेफ्ट साइड पे हिमानी जी हैं, भारती जी हैं, जयदीप जी, निपुण जी। सो करण जी जरा कह रहे हैं मेन होस्ट का देखो यही नहीं। सो वेरी ग्रेशियस ऑफ हिम टू से कि गवर्नमेंट इज ओवरऑल द होस्ट। गवर्नमेंट जी सपोर्ट इतनी कर रही है जी, दिस इज बिन कंटिन्यूइंग 2005 तो ये चल ही रहा अपने पाईटैक्स, और अमृतसर का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। पाईटैक्स का तो अमृतसर का आपस में जोड़ा है ये नाम सिनोनिमस ही। 19th एडिशन इस साल करने जा रहे हैं, और PhD चैंबर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ वालों जोड़ा ये उपराला किया जा रहा है, जो ऑर्गेनाइजर्स ने सानू दसिया कि भी अप्रॉक्सीमेटली 600 के करीब इन्होंने स्टॉल सैटअप किए हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि 600 के 600 जो स्टॉल इन्होंने सैटअप किए हैं, ये सारे के सारे दे हैव ऑलरेडी बीन टेकन अप, बीइंग इंस्टॉल्ड सम ऑफ दैम, लेकिन टेकन अप सारे ने। जोड़ा ये शो करता है कि भी जो इवेंट है, इवेंट इज़ अ सक्सेस बिफोर इट हैज़ बिगन, विच इज़ गुड फॉर द सिटी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਂਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਵਿੰਟਰ ਮੰਥਸ ਐਂਡ some of the most pleasant time जिस दौरान जो टूरिज्म है उन्होंने भी बढ़ावा मिल गया। सो असी प्रशासन के तौर पर इस चीज़ों इस करके होर भी इनकरेज करना चाहांगे कि भी इस तरह के कोई भी इवेंट्स जोड़े वो होर हो, ताकि सिटी सेंटर स्टेज आए, ना केवल नैशनली बल्कि इंटरनेशनली भी। एज साल भी एज पर द ऑर्गेनाइजर्स देयर आर 4 countries which are participating. थाईलैंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वन ऑफ द कंट्रीज, और भी 3 मुल्क ने, शायद बांग्लादेश भी कर रहे हैं सर। ये है ईरान, इजिप्ट। सो देयर आर 4 कंट्रीज, और वक्त सूबे जोड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 सूबे जोड़े वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिसाइड्स पंजाब, विच इज़ अगेन हार्टनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई विश द बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजर्स, and we ardently hope that the event is a success and it generates the kind of expectations which we have of this. Thank you, Rohit ji. And we are Jayanti. Very good evening to all of you. आज हम यहाँ सभी बैठे हुए हैं, पायलट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, जो
एक्सपो में नहीं है, हमारे लिए फुल फेस्टिवल है, एक एक्सपीरियंस है और पंजाब के टेक्सटाइल फैशन इंडस्ट्री का एक डायनामिक प्लेटफॉर्म हमारा इनोवेशन। एंड एज द चेयर ऑफ नेशनल फैशन टेक फोरम, मुझे बहुत गर्व है कि इस साल हम टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का एक पावरफुल फ्यूजन लेकर आए हैं। और इन 5 दिन में पाइरेट्स में सिर्फ हम ये एक्सपो में ही विटनेस करेंगे, हम बहुत सारे मीनिंगफुल सेशंस, पंजाब हेरिटेज शो और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जोड़े से जिसमें आर्टिस्ट एंड सेल्फ हेल्प की जो पार्टिसिपेशन एक्सपो में वो सब देखना है। अब मीनिंगफुल सेशंस से स्टार्ट करें तो कल जैसे 4th December है and we are having the honorable chairperson of National Commission for Local Government of India, Ms. Nisha Rahakulji as the chief guest, on the session around state, women's and enterprise, women shaping the future. आप सब मानेंगे कि women का बहुत एक important और pivotal role रहता है एक family की trajectory को shape करने के लिए, build करने के लिए और साथ में ecosystem को support करने के लिए। और जब हम women की health पर focus करते हैं, उनकी wellness को prioritize करते हैं और उनके entrepreneurial dreams को support करते हैं और हम पूरे ecosystem को transform करते हैं। And National Commission for Women chairperson जो हैं, उनकी presence से हमारे ज़ायदा को एक national level legitimacy और momentum मिलेगा और ये जो रिजल्ट है पंजाब के powerful future blueprint लेके आएगा। साथ ही बात करी जा रही है अब हमारे पंजाब हेरिटेज शो की जो कि हाईलाइट है हमारे पूरे आर्टिस्ट का पंजाब हेरिटेज शो है taking place on the 6th of December and इस शो में जिस तरह की करण जी ने बताया हमारे पास बॉलीवुड सेलिब्रिटी the veteran icon जिसको कहते हैं हेलेन खान जी हैं। हेलेन शो है and हेलेन खान जी की प्रेजेंस है बहुत ही यादगार रहेगी। We have Richard Davies present, who's just very famous for dance of Bollywood. We also have few influencers like Harpreet Suri, gracing the event. And this is a normal brand for playing है। हेरिटेज शो नाम जो दिया गया है वो एक रीजन की वजह से। इसमें हम फुलकारी के जो आर्टिजन्स हैं, ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो आर्टिजन्स बनाते हैं, उनके प्रोडक्ट को ग्लोबल रैंप पे और रनवे पे लेके आ रहे हैं। हमारे साथ बहुत से डिजाइनर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे जो मेजर इसमें हमारे पार्टनर्स हैं इन दिस शो, those are Purana Jewelry House and Couture by Purana Jewelry House. So Rishi Purana is one of the very dynamic executive director of Purana Jewelry House and co-founder Couture by Purana Jewelry House. So this is created by Fashion Tech Forum, PHC and Couture. So इस शो में हम showcase करेंगे 5 to 6 new upcoming designers, established designers and leading designers. So ये amalgamation रहेगा and empowerment रहेगी हर तरह से। जो designers showcase कर रहे हैं उनका नाम शेयर रहेगा रचित खन्ना and Farah Solution and also Couture by Purana Jewelry जो ये हमारे designers हैं। So बहुत ही यादगार रहेगा। इसमें सिर्फ मॉडल्स ही नहीं वॉक कर रहे हैं, we have real women from Amritsar who are gracing the land and those women are all mothers. So it is a celebration of women empowerment along with our Punjab heritage and culture. So ये था heritage show के बारे में। हम आगे हमारा जो फोरम है उसका next event है on 7th of December. That is with the august presence of Women and Child Development, Union Minister of State, Government of India, Shri Sarojini Chandraji, and the session around vision to generation. And इसमें भी हम 10 to 15 entrepreneurs को पैन पंजाब ऑनर कर रहे हैं जिन्होंने अपनी different fields में बहुत सारे changes लाए हैं, change makers रहे हैं, उन सबको हम ऑनर कर रहे हैं and विजन वेंचर में ये डिस्कस करेंगे किस तरह से एक जो आइडिया है उससे एक बहुत बड़ा एम्पायर सेट हो जाता है। So this in itself will be very
all put together. And as such, self-help groups हो, women entrepreneurs हो, और सभी participating creators हैं, उनको congratulate करना चाहूँगी जो इस एक्सपो में participate कर रहे हैं। And उनके लिए जो direct platform है, I'm sure ये बहुत ही meaningful रहेगा। And I also invite all industry leaders and policy makers, innovators and creators to join hands with us. चलिए मिलकर पंजाब को फैशन और टेक्सटाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएं और उसको ग्लोबल हाइट्स तक ले जाएं। थैंक यू। थैंक यू हिमानी जी। बात मेरे को ये तो नहीं याद कि कब की गई थी, बट जब से मैं हूँ चैम्बर में उस परंपरा को हम चलाते आ रहे हैं। आज भी मेरी और रोहित सर की इस पर डिस्कशन हुई। कुछ जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फ्री स्टॉल्स दिए जाते हैं, जिससे मैंने देखा है कि कैसे वो ब्रांड्स बनते गए हैं ओवर द लास्ट 7-8 ईयर्स। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार इस चीज़ के लिए अपलॉड करना चाहूँगा कि वो इस चीज़ का इनिशिएटिव हर बार लेते हैं। आज भी जैसे सर ने कहा, हमें लोकेशन और भी बेटर दीजिए, बिकॉज ये दिखाता है कि फोकस के कैसे ये अपने यहाँ के जो नॉन आई वुड से कि जो हमारे पास डायरेक्टली नहीं आ सकते बिकॉज उनको एक हिच होती है, कैसे ये ढूंढ के लाते हैं और उनको ये प्लेटफॉर्म पाइटेक्स कर देते हैं। तो इट्स समथिंग वेरी वेरी कमेंडेबल। 10-12 साल हो गए ये करते हुए। अभी जयदीप जी बताया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जयदीप जी थोड़ा, बिकॉज ये अमृतसर के हैं, तो थोड़ा खाने पे ये फोकस करके बताएं कि इस बार खाने में हमें फूड कोर्ट में क्या क्या दे रहे हैं। जी, करण गवात्रा जी, हिमानी जी, भारती जी, विपुल अग्रवाल जी एंड साढ़े मीडिया के दोस्त मेरे बहुत सारे पुराने चेहरे ने, जिस तरह मैं पुराना हो गया उस भी नाल मेरे चलते चलते मैं सब तो पहले थोड़ा वेलकम करता कि तुम बड़े अच्छी इकदार के आए हो। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਪਾਈਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਢੋਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੋਲ ਦੇ ਪੋਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਰਟ ਪੇ ਪੂਰਾ ਪਾਈਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਥਾ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੁੱਟਫਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। मैं पर्सनली स्पीकिंग मैं PhD चैम्बर के नाल पिछले 20 साल तो जुड़िया होया हाँ, तो 20 साल तो ही पाइटेक्स 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਈਟੈਕਸ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਗੋਲਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ 50 ਸਟਾਲ ਸੀ। 50 ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਤੋਂ 300 ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ, ਮਤਲਬ 50% ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ MSME ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੀ ਲੋਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 2005, 2006, 7, 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਈਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਟੈਕਸ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪ ਐਕਸਪੋ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਸੇਮ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਟੈਕਸ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਐਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਈਟੈਕਸ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਈਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।